हाउ टू स्ट्रीमलाइन कमिटमेंट्स, आर्ट ऑफ सेइंग नो। कौन कौन नो नहीं कह पाता भाई, बताओ बताओ। अधिकतर लोग नहीं कह पाते। जो आपके सामने नहीं कह पाता कोई। नहीं, अगर कोई पढ़ना चाहे तो, नहीं तो फिर मैं पढ़ती हूँ। नहीं, आप पढ़ो, आपके काम की चीज है। हाउ टू स्ट्रीमलाइन कमिटमेंट्स, द आर्ट ऑफ नो, pillar is control. In Happier Hour, author C.H. references a phenomenon psychologists refer to as a yes damn effect. The idea, first proposed by G.Z. of the University of North Carolina and John Lynch of Duke, is that humans systematically overestimate the amount of free time they will have in the future. So they say yes to future things, assuming they will have time for them. But when that future date arrives, they find they are wrong. In other words, you say yes, and then the future date arrives, and you say damn. इसका इसकी फन एक्टिविटी करते हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? द यस डैम इफेक्ट को हिंदी में बताना है आपको, एक हिंदी नाम बनाना है, तो क्या बनाओगे? हिंदी नाम बनाना है उसका। हाँ। किसका सर? यस डैम इफेक्ट का हिंदी में नाम क्या होगा? ये सिंपल है। हाँ हाँ, ओहो इफेक्ट। पहले तो हम कह देंगे हाँ हाँ हम कर लेंगे। फिर ओहो। टाइम आता है उनमें, फिर ओहो फिर मैं इफेक्ट। ओहो हो नहीं कर पाए। ऐसा हाँ ना। हाँ, ओहो इफेक्ट। बहुत ही प्यारा नाम निकाला भाई जी आपने। ठीक है, तो याद रहेगा। यस इफ यू वांट। If you want to take control of your time, you need to learn the art of oh no, two shots to use. For personal commitments, use the right now test. When हम्म। deciding whether to take something on, ask yourself, would I do this right now? Functionally, you can think of right now as today or tomorrow. The aim is to eliminate the future time distortions observed by psychologists. By pulling the event into the present, you make more clear, rational decision. If the answer to would I do this right now is no, say no. If the answer is yes, take it on. तो जो आपने पढ़ा उसी को ही एक डायग्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। क्या मैं इसे अभी करूँगा? यस तो करो, अगर नहीं तो नहीं करो। और अभी से मतलब ये है कि भले ही आपको एक फिक्स डेट पे करना है, जो भी आपको पता है बताई गई है, लेकिन आप उस डेट को इस तरह से ट्रीट करो जैसे वो प्रेजेंट में है, ताकि आप एक मतलब रियलिस्टिक आंसर देख पाए। तो पर्सनल कमिटमेंट के लिए है राइट नाउ टेस्ट, और प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए है यूज़ द न्यू अपॉर्चुनिटी टेस्ट। तो ये क्या है? तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया है, डज दिस फॉल विद इन माई लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रायोरिटीज? यस तो करना है, नो तो नहीं करना है। और उसमें भी, इज दिस अ हेल्प या अपॉर्चुनिटी? करना ही करना है, यस। एज्यूम दिस विल टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एंड बी हाफ एज रिवॉर्डिंग, वुड यू स्टिल डू इट? टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उतना फ़ायदा भी ना हो, तब भी यस है तो करो, नहीं तो नहीं। तो ये क्या है हमारा न्यू अपॉर्चुनिटी। Opportunity. जी, यहाँ से पढ़ सकते हैं। Step 1. Reference your two lists from the earlier exercises. Does the opportunity fall within your priority professional items? If not, say no. If so, proceed to step 2. Step 2. Is this a hell yeah opportunity?
Writer Derek Sivers proposed this simple rule: if something isn't a hell yeah, then it's no. If it is a hell yeah opportunity, proceed to step 3. Step 3: assume this opportunity takes twice as long and is half as rewarding as you expect it to be. Would you still want to do it? Humans tend to be overly optimistic when taking on something new. Force a degree of rationality into the decision by lowering your expectations. If the answer is now is no, say no. If the answer is yes, take it on. Using these two shortcuts, the right now test and the new opportunity test, you can master the art of no and begin to take control of your time. इसमें अच्छा, ये क्या है कि जी। हम्म, ऑप्टिमिस्टिक जो बोला है उन्होंने कि human tend to be overly optimistic when taking on something new. इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एक दो। जैसे कि मतलब आप सब लोग समझने की कोशिश करना। सपोज देयर इज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल विहासा ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 डेज का। तो एक्चुअली ऐसा होता है, 3 3 डेज एंड हो गए, तो वहाँ के जो मैनेजमेंट है या जो सीनियर फैसिलिटेटर्स हैं वो पूछते हैं कि कुछ कुछ ऐसे विहासा की एक्टिविटीज़ हैं, कुछ कुछ ऐसे काम की डेलीगेशन करना है। इसकी पीपीटी की रिपोर्ट बना के कौन भेज सकता है, इसका ये कौन कर सकता है, इसका व्हाट्सएप ग्रुप बना के कौन ये कर सकता है। तो उस समय सब जोश जोश में होते हैं हम्म और सबको हीरो बनना होता है। तो सबके हाथ उठ जाते हैं, मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा। तो वो ये नहीं सोच रहे कि एक्चुअली घर जाके क्या मेरे को इतना मोटिवेशन रहेगा करने का, क्या मेरे पास इतना टाइम होगा। तो उनको क्या यूज़ करना है, राइट नाउ टेस्ट। कि मुझे कि हम्म अभी करने को कहा जाए, मान लो 3 दिन बाद भी मुझे करना हो तो क्या मैं करूँगा। हम्म या फिर वो किस तरह से न्यू अपॉर्चुनिटी टेस्ट है। तो हम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं फ्यूचर को लेके, नई चीज़ों के बारे में कि हम कर लेंगे, हो जाएगा। हम्म तो अधिकतर लोग, जैसे लोग चाहे ग्रुप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, चाहे लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप देख लो लोग कुछ भी नई चीज़ खरीद के लाते हैं घर पे भी, कोई नया प्रोडक्ट, हेल्थ के कनेक्शन का भी, कितने दिन लोग उस पे काम करते हैं, 3 4 दिन जोश रहता है, फिर वो चीज़ रखी रहती है साइड में। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, फोर्स ए डिग्री ऑफ रेशनैलिटी इनटू द डिसीजन बाय लोअरिंग योर एक्सपेक्टेशन। कि इस चीज़ पे मैं इतना लगाने के बाद भी अगर मेरे को इसका हाफ रिजल्ट मिले तब भी क्या मैं इसे लूंगा, तब भी मैं किसे करूंगा। हम्म मान लीजिए कोई सेवा हमने की, कोई वॉलंटियर वर्क हमने किया, और फिर हमसे ये कह दिया जाए कि नहीं नहीं वो तो किसी और ने कर लिया है, आपसे बेटर हम आपका वाला पीपीटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो भी क्या आप करना चाहोगे वो। हम्म मतलब ऐसे डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फोर्सिंग अ डिग्री ऑफ रेशनैलिटी इनटू योर डिसीजन मेकिंग। तो ऐसा बहुत होता है। और उस समय जोश जोश में यस यस, बाद में फिर नो नो। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, क्या टाइटल था इसका, हाउ टू स्ट्रीमलाइन कमिटमेंट्स, आर्ट ऑफ सेइंग नो। तो बेसिकली आर्ट ऑफ सेइंग नो कहना, कई बार हमें क्या लगता है, हमें गिल्ट भर दिया गया है हमारे अंदर। नो कहने का मतलब है तुम तो बड़े खराब हो, तुमने नो कैसे कह दिया। जबकि नो कह के हम अपनी भी हेल्प कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। उनकी हेल्प हम कैसे कर रहे हैं, ताकि वो एक राइट पर्सन को काम दे जो राइट काम है, ताकि उनका काम डिले ना हो। और अपनी भी हेल्प कर रहे हैं ताकि हम उसके बजाय कोई और इंपॉर्टेंट काम करते हैं अगर हमें करना है तो। तो ये सबके भले में है, नो कहना राइट टाइम पर। तो हमें ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। इसके बाद अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक।